A lovely good morning to you all students. Today I am going to discuss a very important topic of your chapter, continuity and differentiability. Differentiability of a function at a point. Let us consider f(x) be a real valued function defined on an open interval ab. Okay, and let c be any points of open interval ab. Then the given real valued function f(x) is said to be differentiable at that point x equal to c if and only if limit x tends to c f(x) minus fc upon x minus c exists finitely. Okay, students, this limit is called derivative of f(x) at x equal to c, or differential coefficient of f(x) at x equal to c, and it is denoted by f dash c or dfc or ddx of fx at x equal to c. So students, we can say this limit will be equal to what? That is f dash c will be equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. Okay, or we can say it will be equal to dfc, or we can say it will be equal to ddx of fx at where x equal to c. Okay, students. Students, see the full explanation of differentiability of a function at a point. Since fx is differentiable at x equal to c if and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely. Means what? It will exist finitely if and only if limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c is equal to limit x tends to c plus fx minus fc upon x minus c. And students, if and only if limit h tends to 0 fc minus h minus fc upon c minus h minus c, and here c and c will be cancelled out. Limit x tends to h tends to 0 f c plus h minus fc upon c plus h minus c, and here c and c will be cancelled out. So we can say this limit will exist if and only if limit h tends to 0 fc minus h
minus fc upon minus h will be equal to limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h. Students, this limit will exist finitely if limit h tends to 0 fc minus h upon fc minus h will be equal to limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h. This is called LHD. What? LHD, left hand derivative, and this is called RHD. Means right hand derivative. So students, we can say a function is differentiable at a point x equal to c if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative. Okay students. Students, see the geometrical meaning of derivative. क्या geometrical meaning होता है differentiability of a function at a point का? Let us consider y is equal to fxb of real valued function and it is defined in closed interval open interval ab and c be any point in this open interval ab. Okay, and let us consider this is graph of y is equal to fx. Okay, let us consider this is point c, then coordinate of this point will be what? cfc. x इक्वल टू सी आप जब राइट करेंगे पुट करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? fc हो जाएगा y. So coordinate of any point p will be c comma fc, and let's consider this is another point c plus h. Then coordinate of this point q will be what? c plus h f c plus h. And let us consider this is another neighboring point c minus h. Then coordinate of this point r will be c minus h f c minus h. मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक कर्व है, एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है और उस एफ एक्स के ग्राफ पे एक पॉइंट हम p मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट CFC है। C के नेबरिंग पॉइंट हम लोग c प्लस h कंसीडर कर लेते हैं और c माइनस h। तो ग्राफ पे पॉइंट्स q और r का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? c प्लस h fc माइनस h c प्लस h c minus h fc minus h. Okay students, join this rp and join this qp. Then what will be slope of chord pq? स्लोप ऑफ PQ क्या होगा? तो किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हैं तो उसका स्लोप का क्या फॉर्मूला बताया गया था? अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स p और q के कोऑर्डिनेट्स हैं, स्लोप क्या बताया गया था? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then we can say slope of chord PQ will be y2 minus y1 means fc plus h minus fc upon x2 minus x1 c plus h minus c, and here c and c will be cancelled out. Slope of chord RPR will be equal to what?
एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, या इट विल बी कैंसल्ड आउट। ओके स्टूडेंट्स, सपोज h will tends to 0, then what will be happen? जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या होगा? When h will tends to 0, then this point will tends to C, and then q will tend to P. तो q किसके तरफ टेंड करेगा? P के तरफ. And suppose h tends to 0, then also we can say r will tends to P. Okay? If h tends to 0, then what will happen? Slope of chord PQ, write down here h limit h tends to 0 will be equal to limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h slope of chord PR is equal to limit, write down here, limit h tends to 0, limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon minus h। तो स्टूडेंट्स, अगर h टेंड कर रहा है 0 को, मीन्स ये जो q है वो किसको टेंड कर रहा है? p। ओके, so we can say q tends to p, and when h will tends to 0, then r tends to, and this is slope of chord PQ and this is slope of chord PR। एक PQ का स्लोप है और एक PR का स्लोप है। जब Q P की तरफ टेंड करेगा और R P की तरफ टेंड करेगा, ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यह रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, which is limiting position of the chord QP। अरे ये आपका क्या है? स्लोप है, किसका? chord PQ का। लेकिन जब h टेंड कर जाएगा 0 की तरफ तो ये Q P की तरफ आ जाएगा, और ये किसके स्लोप के बारे में, किसके स्लोप के बारे में रिप्रेजेंट करेगा? किसके स्लोप के बारे में बताएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। आप देखिए, ये धीरे धीरे जब इसके करीब आएगा तो एक कार्ड धीरे धीरे कर्व को टच करते हुए नजर आएगा, और फाइनली जब h टेंड कर जाएगा 0 को तो यह किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसका मतलब यह क्या राइट किया गया है? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कार्ड QP when Q will tends towards P। जब Q P की तरफ टेंड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यह P पर एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर R टेंड करेगा P को तो धीरे धीरे एक कार्ड छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और आप देखेंगे जब h टेंड कर जाएगा 0 को, मतलब 0 के बहुत करीब आएगा तो यह स्लोप यह कॉर्ड क्या करेगा? टच करने लगेगा किसको? कर्व। मींस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी वही रिप्रेजेंट करेगा P पर, क्या P पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डेफिनेशन क्या होता है? मैं उसीलिए इसको इरेज अभी नहीं किया हूं कि अगर फंक्शन
डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, LHD विल बी इक्वल टू RHD। आप देखें ये आपका RHD है, ये आपका LHD है, मींस ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा था। ये राइट से P की तरफ और ये लेफ्ट से P की तरफ। ओके, मींस हम जानते हैं कि एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट C if LHD at C is equal to RHD at C। तो स्टूडेंट्स, if LHD is equal to RHD, then what will happen? It means that this represent LHD equal to RHD represents a unique tangent at a point P। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिक टेंजेंट को किसी पॉइंट P पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस स्टूडेंट्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता करते हैं हम लोग, उसका डेरिवेटिव पता करते हैं किसी पॉइंट पे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हम लोग क्या पता कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो हम लोग क्या पता कर रहे होते हैं, किसका स्लोप पता कर रहे होते हैं, टेंजेंट का। आगे बात समझ में, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, a differential coefficient of a function at a point means slope of a tangent at that point। ओके, और LHD और RHD क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर इन अनदर लैंग्वेज यू कैन से इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ एंड ओनली देयर इज नो एनी कॉर्नर पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन के ग्राफ में अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो समझिए कि वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। सपोज करिए किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, तो निश्चित रूप से वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप मॉडुलस फंक्शन देखे हैं, मॉड ऑफ एक्स का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसे होगा। यह फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप LHD पता करेंगे तो उसका टेंजेंट ए रहेगा, ठीक है। जब RHD पता करेंगे तो उसके लिए टेंजेंट ए रहेगा, और वह यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मींस LHD RHD के बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे यह यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह जिस फंक्शन का ग्राफ है उसमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, और यह फंक्शन उस कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उस कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको दो टेंजेंट मिल रहे हैं। क्लियर। तो कोई जिस तरह आप कंटिन्यूटी में पढ़े थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं हुआ हो, कहीं होल नहीं हुआ हो, कहीं जंप नहीं किया हो, वैसे ही कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कब, जब वह उस फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट्स, उस फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स न। क्लियर। मैथमेटिकली अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो क्या पता करेंगे आप, LHD पता करेंगे, सॉरी LHD यहाँ तो माइनस होगा ना, माइनस राइट किया गया है। आप क्या राइट करेंगे, LHD और RHD पता करेंगे मैथमेटिकली। अगर LHD और RHD इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि वह फंक्शन क्या कर रहा है, और वह फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब कुछ लोगों के मन में एक बात एराइज हो रही है कि सर क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वह डिफरेंशिएबल होगा, या क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है और वो पूछा भी जाता है। वो थ्योरम क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। मींस अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है
तो वह निश्चित रूप से उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। यह आपका एक थ्योरम है, आइए इसको देखते हैं। थ्योरम है differentiability implies continuity of a function at a point, but converse is not necessarily true. करेक्ट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, लेकिन अगर वह कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आइए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, अगर वह डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा। ओके, प्रूफ। Let f(x) is differentiable at a point x is equal to c, then what will be happen? अगर कोई फंक्शन f(x) किसी पॉइंट c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा? f dash c will be equal to limit x tends to c fx minus fc अपॉन x माइनस c। क्यों स्टूडेंट्स, यही तो अभी आपको बताया गया था, यहीं से आप LHD और RHD पता किए थे और कहते कि अगर इक्वल हो जाएगा तो यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और यह लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो कहेंगे कि यह फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे f डैश c। ओके, अब इस फंक्शन को, कोई फंक्शन है f(x), इसको x इक्वल टू c पे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? टू शो f(x) is continuous at x is equal to c, then to show f(x) is continuous at x is equal to c, we shall show what? Limit x tends to c f(x) is equal to fc। अगर इतना हम दिखाने में सफल हो जाएं, यानी यहाँ से आप LHL RHL कर देंगे या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो LHL will be equal to RHL will be equal to, अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया तो इस केस में कह सकते हैं कि ये फंक्शन कह देंगे हम लोग, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ऐसा दिखाने में हम सफल हो गए तो समझिए कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑलरेडी इट इज गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x is equal to c, then we have f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c। ओके स्टूडेंट्स, fx माइनस fc को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसको कुछ हम ऐसे राइट कर सकते हैं, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। क्यों? अभी इसको हम लोग कट करके तो बराबर हो जाएगा। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c
इंटू एक्स माइनस। स्टूडेंट्स आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि लिमिट लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप राइट कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। यहाँ प्रोडक्ट है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to c fx minus fc upon x minus c into limit x tends to c x minus c. Students, it will be equal to limit x tends to c fx, and this is constant function. When x will tends to c, then its value will be constant and it will be equal to fc. And here this is equal to f dash c because it is given that the given function is differentiable at x is equal to c. Then we have limit x tends to c fx minus fc upon x minus c is equal to f dash c. Therefore we can write here f dash c. Okay. And when x will tends to c, then what will be happen in the case of x minus c? Here c minus c. When x will tends to c, then here c minus c will be equal to 0. Then it will be 0, and this will imply limit x tends to c fx minus fc. And when we multiply f dash c by 0, then it will be equal to 0, and so we can say limit x tends to c fx will be equal to what, fc. और स्टूडेंट्स अगर x tends to c, लिमिट x tends to c fx fc के इक्वल हो गया, मीन्स LHL will be equal to RHL will be equal to value of the function. Then in this case we can say the given function is continuous at a point x is equal to c. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो थ्योरम का था हम कवर कर लिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वह क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा। ऐसा हम लोग मान लिए थे कि जो दिया गया फंक्शन है x इक्वल टू c पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब कंटीन्यूअस दिखाना था तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट किए हैं यहाँ पे, ओके। फिर लिमिट x टेंड्स टू c अप्लाई किया है, यहाँ पे रिजल्ट हमको मिला है कि क्या है, डेरिवेटिव है। इसके जगह पे हम लोग f प्लस c राइट किए, 0 से मल्टीप्लाई किए। सो हियर वी हैव लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, दैट वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू c. See the second part, how continuity does not imply the given function at point as differentiable. That is how continuity does not imply differentiability. We shall show this part by taking a counter example. Let us consider a function fx is equal to mod of x, modulus function. In the previous lecture, I told you modulus function is continuous everywhere. If we draw the graph of the modulus function, then it will like as v. Here clearly there is no any break, no any jump, no any hole, so we can say this is a continuous function, okay. Check differentiability of this function. Check LHD. Write down this function is, this function fx is continuous everywhere, okay. Find LHD. Limit h tends to 0 fc minus h minus fc upon minus h. Then it will be equal to limit h tends to 0 fc minus h will be equal to mod of c minus h minus fc
And here we have to check differentiability at a point x is equal to 0, because here the corner point in the graph of mod of x at x is equal to 0, then c is replaced by 0. Okay. Then what will be value of f0? 0 upon minus h, and it will be equal to limit h tends to 0 mod of minus h plus h upon minus h. Here h and h will be cancelled out, and then LHD will be equal to minus 1. Okay. Find RHD. Limit h tends to 0. What is RHD? F c plus h means 0 plus h minus fc means f0, because here we have to check our differentiability at x equal to 0, because here at x equal to 0 a corner point in the present in the graph of the given function f x equal to mod of x. H limit h tends to 0 f0 plus h, then it will be equal to mod of 0 plus h minus value of f0. When you put at x is equal to 0, then what will be happen? Mod of 0, and it will be equal to 0 upon h, and it will be equal to limit h tends to 0 h upon h, and finally it will be cancelled out, and then it will be equal to 1. Students, see the LHD and RHD for the given function f x equal to mod of x at x is equal to 0. Here LHD is minus 1 and RHD is 1. So we can say LHD left hand derivative is not equal to right hand derivative at x is equal to 0. Okay. So the given function is not differentiable at x is equal to 0, जबकि ये जो दिया गया मॉडुलस फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, किसी भी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन हम लोग 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक किए तो क्या दिखा? वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थ्योरम क्या था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वह उस पर कंटीन्यूअस होगा, लेकिन अगर वह फंक्शन कंटीन्यूअस उस पॉइंट पे है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे वह डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उससे हम लोग कंटिन्यूटी को इजीली दिखा दिए। हाँ, सेकेंड पार्ट के लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया, यह फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो 0 पर भी कंटिन्यूअस रहा होगा। अब हम लोग को पता करना था कि क्या यह फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल भी होगा, तो हम चेक किए तो वह फंक्शन क्या दिख रहा है? 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, अगर कहीं आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिए हैं तो कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप राइट कर सकते हैं, वी हैव अ थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वह कंटिन्यूअस जरूर होगा। ओके students, if you have any doubts related to this topic, you are free to ask any question. Okay, thank you.